वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी को नमस्कार। ऑन बिहाफ ऑफ क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीजन NHSRC, we welcome you to this 13th webinar pertaining to implementation support for the primary health facilities under National Quality Assurance Standards. क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीजन NHSRC के तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस 13th वेबिनार में, जो इंटेंडेड है प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज में नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा उससे रिलेटेड। टुडेज वेबिनार इज pertaining to the two important topics as we have already shared in the agenda. आज का जो हमारा वेबिनार है दो important topics से रिलेटेड है, जैसा हमने एजेंडा में शेयर किया था। Before we start, let's have a quick recap of the 12th webinar. स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं लास्ट वेबिनार, जहां पर हमने आपके साथ दो टॉपिक शेयर किए, where we shared with you two topics. One was related to infection prevention and control measures. We said that there is only one universal standard precaution, that is you treat each and every patient or the beneficiary that is coming to the health facility as an infectious patient. जहां हमने आपको बताया कि एक ही यूनिवर्सल प्रिकॉशन है कि जितना भी पेशेंट और बेनिफिशियरीज जो फैसिलिटी पे आ रहा है, आप उसको एज अ इन्फेक्शियस पेशेंट ही ट्रीट करें। Besides that, there are standard precautions which each healthcare worker has to abide by. Beside universal health precaution के there are standard precautions हैं जिसको हर एक healthcare worker को अमल में लाना चाहिए। That is related to hand hygiene, personal protection, instrument processing, environmental control, safe injection practices and biomedical waste management. जब हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, ये हैं आपकी हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो आप यूज करते हैं जिसको हम PPE बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसिंग का तरीका, एनवायरमेंटल कंट्रोल मतलब कि एनवायरमेंट की साफ सफाई, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। हमने आपसे कुछ अतिरिक्त प्रिकॉशंस की बात करी that are related to airborne precautions, droplet precautions. We also discussed about some additional precautions that a healthcare worker must do to prevent the airborne droplet infections and also the contact precautions. We also showed you the ideal processes that has to be followed for the hand hygiene practices, both to using the hand rubs and also to soap and water. हमने आपसे लास्ट टाइम हमने आपको बताया कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो हैंड वॉशिंग के लिए यूज होगी बोथ हैंड रब से, और जब आप सोप और वाटर से कर रहे हैं तो कैसे होगा। Then we also discussed about this particular 5 movements of hand hygiene कि आपको हैंड हाइजीन परफॉर्म करना कब है। So that is before touching the patient, after touching the patient, after touching the patient environment, after having the exposure of the body fluids, and before doing or after doing any aseptic procedure. So we told you about this particularly. Am I audible? Please, if you can check. Can we and take this? Okay, thank you. And so we talked about 5 movements of hand hygiene. ये हैंड हाइजीन हमने करना कब है, पेशेंट को छूने से पहले, पेशेंट को छूने के बाद, पेशेंट की एनवायरनमेंट सराउंडिंग छूने से पहले, नहीं बाद, किसी भी बॉडी एक्सपोजर या फ्लूइड एक्सपोजर के बाद, और किसी भी प्रोसीजर करने से पहले और प्रोसीजर करने से बाद आपको हैंड वॉशिंग करनी ही करनी है। We also briefed you about the surgical
hand hygiene practices that has to be practiced. There are some do's and don'ts related to the gloves use, that you also have to always wear the gloves during any activity that involves exposure to blood and other body fluids. Always change the gloves between the task and the procedure. Remove the gloves after caring for each patient, and always wear the sterile gloves for any aseptic procedure. हमने आपसे कुछ डूज एंड डोंट्स की बात करी जब ग्लव यूज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें जो करना है वो ये करना है कि जब भी आपने कोई भी एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं जहां पर आपको एक्सपोजर बॉडी फ्लूइड का मिलना है, आपको ग्लव्स डालने ही है। हर एक काम के बाद, हर एक प्रोसीजर के बाद आपको ग्लव्स चेंज करने ही है। हर एक पेशेंट केयर के बाद आपको नया ग्लव्स डालना ही है। और जो भी अगर आप कोई एसेप्टिक प्रोसीजर कर रहे हैं जहां पर स्टेराइल कंडीशन की जरूरत है, वहां पर आपको स्टेराइल ग्लव्स ही डालने हैं। If we talk about the don't is related to do not use the gloves after reprocessing or decontamination. तो reprocessing of the gloves is not allowed. जहां पर हम ग्लव्स को ऑटोक्लेव करके फिर से रीयूज कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस को हमें नहीं करना है। We also showed you ideal process for the donning of the sterile and the non-sterile gloves. हमने आपको स्टेराइल और नॉन स्टेराइल ग्लव्स के डालने के तरीके के बारे में लास्ट टाइम बात करी, एंड वी आल्सो शोड यू द करेक्ट procedure that has to be followed for the donning and doffing of the personal protective equipments. हमने आपको तरीका या सीक्वेंस बताया कौन कौन सा पीपीई इक्विपमेंट आप कैसे सबसे पहले डालेंगे और कौन सा सबसे पहले उतारेंगे। तो इस श्रृंखला में first of all you are washing your hands, then you are wearing your gowns, then you are wearing your face mask, then the eye wear, and in the last you are wearing the gloves. So, or similarly for the doffing, you are first removing your gloves, then you are removing your gown, and then you are removing your eye wear. Beside, after that, the face mask and again the hand wash has to be performed. तो जब हम डॉनिंग एंड डॉफिंग की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हाथ धोए जाएंगे। आप सबसे पहले अपने ग्लव्स डालेंगे, उसके बाद आप अपना मास्क डालेंगे, फिर आप आई वियर डालेंगे और फिर आप ग्लव्स डालेंगे। उतारने की विधि बिल्कुल अलग रहेगी, जहां पर पहले आप ग्लव्स निकालेंगे, आफ्टर दैट यू रिमूव योर गाउन, देन यू रिमूव तब उसके बाद आप अपना आई वियर हटाएंगे एंड देन फेस मास्क और फिर से हैंड वॉश परफॉर्म किया। ये हमने कुछ तरीके आपको बताए रिगार्डिंग द डॉनिंग ऑफ द गाउन। This was the method that was told to you regarding the donning of the gown. We also briefed you about some eye protection and the medical mask care, safe injection practices. जहां पर हमने आपको बताया कि आप तो सबसे पहले इन safe injection practices में we touched upon what is the management that has to be done during the needle stick injuries or any sharp injury, how to report it, how to test it and how to treat it. जब हमने आपको बताया नीडल स्टिक इंजरी के बारे में कि आप जितनी बार भी नीडल स्टिक इंजरी हो रही है आपको करना क्या है, इसको रिपोर्ट करना है, क्या आपके साथ टेस्ट किए जाएंगे और हाउ इट हैज टू बी ट्रीटेड। वी आल्सो शोड यू the standard method for the preparation of the sodium hypochlorite for the disinfection of the environments. And then there was the second session that was related to biomedical waste management. सेकेंड सेशन हमारा रिलेटेड था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से, जहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ द वेस्ट कैसे होगा हमने आपको बताया, where we touched upon the classification of the waste based on the new category as per the biomedical waste management rules. We also told you about the pre-treatment of the biomedical waste. Again, it has to be highlighted if a glassware container has to be a puncture proof and the tamper proof container. Similarly, for the sharps, a white container has to be there. हमने आपको बताया कि जो ग्लास आपके पास शार्प इकट्ठा हो रहा है या शार्प जो ग्लासवेयर जो आपके पास शार्प इकट्ठा हो रहा है उसको आप एक ब्लू कलर के टेम्पर प्रूफ और पंचर प्रूफ कंटेनर में डालेंगे। सिमिलरली जो आपके पास शार्प वेस्ट इकट्ठा हो रहा है उस शार्प को आप व्हाइट कलर के कंटेनर में डालेंगे।
जिन फैसिलिटीज पर इस तरह का टेम्पर प्रूफ और पंचर प्रूफ कंटेनर अवेलेबल नहीं है, उन फैसिलिटीज को प्री ट्रीटमेंट ऑफ द शार्प वेस्ट हाइपोक्लोराइड के साथ करना अनिवार्य है। अदरवाइज आप पूरा का पूरा डब्बा बायोमेडिकल वेस्ट एजेंसी को, कलेक्शन एजेंसी को हैंड ओवर कर सकते हो। We also showed you about different processes that can be adopted for the liquid waste management. हमने आपको लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का तरीके का भी एक उदाहरण दिया लास्ट टाइम। और आपके डीप बरियल पिट, जिसके लिए सबसे पहले आपको एनओसी होना स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अनिवार्य है, और इस डीप बरियल पिट की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाएगी इसके बारे में हमने आपको बताया। We also briefed you about on this particular availability of the deep burial pit, for which a formal no objection certificate from the State Pollution Control Board is a mandatory requirement. And how to construct this pit, it has been clearly given in this particular picture. So with that, we will proceed with today's session. Today's session is pertaining to statutory and first is statutory and the legal requirements. So this session will be taken up by Dr. Ranjit Mandal. Dr. Ranjit Mandal is Senior Consultant with Quality and Patient Safety Division Certification Unit, and he is, anchoring the certification processes across the country. He will be briefing about the one important topic that is pertaining to the statutory and legal requirements. आज पहला सेशन हमारे पास लीगल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हैं जो फैसिलिटी को मीट करनी है। इस सेशन के लिए हमारे साथ डॉक्टर रंजीत मंडल हैं। डॉक्टर रंजीत मंडल सर्टिफिकेशन यूनिट में सीनियर कंसल्टेंट कार्यरत हैं और वो एंकर कर रहे हैं सर्टिफिकेशन यूनिट प्रोसेसेस को क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीजन एनएचएसआरसी की तरफ से। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Abhay. Good afternoon, all. Am I audible? Anyone can respond in the chat box? Yes, thank you. As Dr. Abhay told that this is one of the requirements for meeting the compliances of National Quality Assurance Standard. And it is these standards are built in support services area of concern. तो ये टॉपिक हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं एनक्वास को अचीव करने के लिए, और ये सपोर्ट सर्विसेज में बताया गया है कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एरिया ऑफ कंसर्न, हमारे 8 एरिया ऑफ कंसर्न में से एक एरिया ऑफ कंसर्न है सर्विस, सपोर्ट सर्विस। सपोर्ट सर्विसेज में हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज आते हैं जिसमें हमें इंश्योर करना होता है कि क्लीनिनेस है, हैंड हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना पड़ता है। These are the essential requirements, and all facility has to meet the legal requirements to ensure the compliances of the standard. So इसमें सपोर्ट सर्विसेज के D6 स्टैंडर्ड जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के हैं, उसमें ये बताया गया है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लीगल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर ensuring the quality of service delivery in the facility. So in this topic we will discuss what are the major requirements of this standard. The facility D6 क्या कहता है? The facility is compliant with the statutory and regulatory requirements. The facility ensure its process in compliance with statutory and legal requirements. तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट्स है हमारा वो है ऑथराइजेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होना है। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ऑथराइजेशन के लिए क्या करना होता है। नो स्मोकिंग साइन बोर्ड एक डिस्प्ले होना चाहिए, ये भी एक लीगल रिक्वायरमेंट्स है
इंटीमेशन प्रोसेस ऑफ नोटिफाइबल डिजीज ने भी स्टेट्स नॉर्म्स के अनुसार में, सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं नोटिफाइबल डिजीज के प्रोसेस आपके फैसिलिटीज में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ये भी एक हमारा लीगल रिक्वायरमेंट्स है। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपीज ऑफ रेलिवेंट लॉज एंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स, डिफरेंट लॉज एंड ऑर्डर्स जो हमारे पास होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो फैसिलिटी के लिए एप्लीकेबल है फॉर द कम्युनिटी, वो सब चीज हमारे फैसिलिटी में जो एनक्वास को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके पास उपलब्ध होना चाहिए। पहला है जैसे ऑथराइजेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये इट्स ए लीगल रिक्वायरमेंट्स, और ये लीगल रिक्वायरमेंट्स कहाँ से मिलता है हमें? इसको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो हर एक हेल्थ केयर फैसिलिटीज को ऑथराइजेशन उपलब्ध कराती है। सो इसके लिए हर एक फैसिलिटी को ऑथराइजेशन प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। हर एक स्टेट्स का अपना अपना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिसमें आपको अपने फैसिलिटी को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। एक नॉमिनल फीस रहता है। जिस अस्पताल में नॉन बेडेड अस्पताल है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बेसिकली 24/7 नहीं चल रहा है, तो ये नॉन बेडेड ओपीडी के कंसिडर में होता है। तो वन टाइम नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लेती है। लेकिन हर एक स्टेट्स में अलग अलग नॉर्म्स फॉलो करता है। कुछ स्टेट्स ने एग्जम्पशन भी दे के रखा है, वो फीस नहीं लगता है, जस्ट दे हैव टू अप्लाई फॉर ऑथराइजेशन फॉर जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलग अलग तरीके लिए ऑथराइजेशन देती है। फर्स्ट है जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट के लिए ऑथराइजेशन देंगी, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑथराइजेशन देती हैं, और CBWTF जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज होती है वो कलेक्शन देन ट्रांसपोर्टेशन एंड उसके बाद डिस्पोजल करने के लिए देती है। तो हमारे फैसिलिटीज क्या कर रही है? जनरेशन करती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनरेट कर रही है, इसलिए हमें लेना है क्या है? ऑथराइजेशन फॉर जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड डिस्पोजल के लिए कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी लेती है। बट आयुष्मान आरोग्य मंदिर को इंश्योर करना भी है कि कुछ बायोमेडिकल वेस्ट है डिफरेंट कैटेगरीज के, आपने लास्ट सेशन में जानकारी पाई है, उनकी डिस्पोजल के लिए भी हमें प्रावधान करना पड़ता है। उसमें क्या है कि हमारा येलो कैटेगरी ऑफ वेस्ट जो है उसके लिए हमें डीबरियल पीट, अगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऑथराइजेशन आपको दिया है जनरेशन एंड डिस्पोजल के लिए, तो आप ऑथराइजेशन आपको इसके लिए भी लेना होगा, डी बरियल पीट के लिए भी ऑथराइजेशन लेना होगा, परमिशन लेना होगा कि हम हमारा जो नियरेस्ट CBWTF है, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है, वो काफी दूर है, सर्विस उपलब्ध नहीं है, तो हम आप डीप बरियल पीट के द्वारा उसका निष्पादन करेंगे। तो ये इसके लिए भी डीप बरियल पीट के लिए भी आपको ऑथराइजेशन प्राप्त करना चाहिए। दूसरा है कि आपको ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ्स ऑन बायोमेडिकल वेस्ट, ये जब रूल्स पढ़ेंगे, इस रूल्स में कहा है कि ऑन रेगुलर बेसिस में बायोमेडिकल वेस्ट में ट्रेनिंग्स होने चाहिए। डिफरेंट स्टाफ चेंज हो रहे हैं, तो टाइम टू टाइम एटलीस्ट 6 मंथ में एक बार बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे स्टाफ्स के लिए ट्रेनिंग्स कंडक्ट करना चाहिए और उसका रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। Then recording of quantity of waste generated on daily basis for annual report submission. As per the rules of biomedical waste management rules 2016, every facility has to submit an annual report of how much quantity of biomedical waste they have generated. तो आप एक साल में आप जब सबमिट करेंगे, ये कैलेंडर ईयर में होता है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक में आपने कितने बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट किए थे वो आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सबमिट करना है। तो इसके लिए आपको रिकॉर्डिंग करना है एवरी डे, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है, उस रजिस्टर में आप वेस्ट जनरेट कितना क्वांटिटी में जनरेट हुआ है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेस्ट, उसको मेंटेन करना है, सो दैट यू कैन कंपाइल द रिपोर्ट्स एंड सबमिट ड्यूरिंग द एनुअल रिपोर्ट सबमिशन। अनदर थिंग, तो अगर नियरेस्ट CBWTF से आपका लिंकिंग है तो उसके लिए आपके पास एग्रीमेंट पेपर या आपके PHC के पास अगर एग्रीमेंट पेपर है तो उसकी कॉपी एक रहनी चाहिए।
और अगर आप फैसिलिटी में डीबरियल पिट का प्रावधान करते हैं तो यू हैव टू गेट द ऑथराइजेशन फॉर डीबरियल पिट फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये है ऑथराइजेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का लीगल रिक्वायरमेंट्स। साथ ही है कि इसके साथ आपको डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट कलर कोडेड बिन्स भी उपलब्ध होना चाहिए फॉर इंश्योरिंग द कंप्लायंस। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स है लीगल रिक्वायरमेंट्स है, नो स्मोकिंग साइन बोर्ड डिस्प्लेड होना चाहिए। This is very legal requirements, and all facilities government plus private health facilities should have. तो display of signages at strategic site होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहीं पे भी हम अपना ये नो स्मोकिंग साइन बोर्ड लगा दिए। तो स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स इनसाइड में भी होने चाहिए। एज पर एनक्वास रिक्वायरमेंट्स हमारे इनसाइड द बिल्डिंग होने चाहिए। कहाँ पे स्ट्रेटेजिक साइट क्या हो सकता है, जब आप इसको नो स्मोकिंग जोन कह रहे हैं, एरिया कह रहे हैं, तो वेटिंग एरिया में लोग बैठ के आप वेट कर रहे हैं उस जगह पे, क्योंकि उस जगह पे हो सकता है स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दे। तो ऐसे जगह पे आपको लगाना है जिससे वो विजिबल हो और इस लीगल रिक्वायरमेंट्स का वायलेशन ना हो। इनसाइड द बिल्डिंग में होगा, आउटसाइड द बिल्डिंग विद द प्रेमाइसेस में आपको एंट्रेंस में पार्किंग एरियाज में that this is no smoking zone, no smoking area should be displayed. So जैसे कि हमारा रिक्वायरमेंट्स है, एनकॉस का रिक्वायरमेंट है डिस्प्ले साइनेजेस एट स्ट्रेटेजिक साइट। तो हमेशा आप जब भी डिस्प्ले कर रहे हैं ये रिक्वायरमेंट नो स्मोकिंग, तो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक सोच समझ के लगाएं कि इस जगह पे लगाने से हमारा पेशेंट जो अटेंडेंट्स आ रहे हैं, बेनिफिशियरीज आ रहे हैं, इसको इस रूल्स को वायलेट ना करें। इसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि कैसा डिजाइन होता है, ये आप देख सकते हैं स्लाइड में। नो स्मोकिंग एरिया, स्मोकिंग हियर इज एन ऑफेंस, और इसका मिनिमम साइज है 60 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑन द बोर्ड आपके सामने में ये डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये लीगल रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश में डिस्प्ले कर सकते हैं। नोटिफाइबल डिजीज, ये डिजीज लीगली हमें रिक्वायरमेंट्स हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा कि हर एक फैसिलिटीज में अगर कोई डिजीज नोटिफाइबल में मेंशन है, उस डिजीज का अगर कोई केस आपके पास आता है तो आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, अपने हायर अथॉरिटीज को सबमिट करना है। आप अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर रिपोर्टिंग अथॉरिटीज हमारे पीएचसीज में होंगे, तो आप मेडिकल ऑफिसर्स को अपने फॉर्म सबमिट करेंगे। इससे क्या होता है, ये नोटिफाइबल डिजीज का रिक्वायरमेंट्स है कि इट अलाउज द अथॉरिटीज टू मॉनिटर डिजीज एंड प्रोवाइड्स अर्ली आउटब्रेक वार्निंग्स। अगर एक दो केस अगर आते हैं नोटिफाइबल डिजीज के, तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में अदर एरियाज में भी, कैचमेंट एरियाज में भी इस चीज को वार्निंग के तौर पे यूज करके प्रिवेंट किया जा सके। इन इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल है कि डिटरमाइन कौन कौन सा डिजीज रिपोर्टेड होगा। हर एक स्टेट, हर एक जगह पे एक जैसा केसेस नहीं रहते हैं, लेकिन स्टेट्स के लिस्ट में भी नोटिफाइबल डिजीज होते हैं। एग्जाम्पल कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स है, डेंगू, फिर हेपेटाइटिस है, लेप्रोसी, ये सब अगर केसेस अपने एरिया में हैं तो आपको नोटिफाई करना है। और आपके पास लीगल रिक्वायरमेंट में क्या है कि आपके स्टेट में कौन कौन सा नोटिफाइबल डिजीज है उसकी भी लिस्ट उपलब्ध रहना चाहिए। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटीज ऑफ कॉपीज ऑफ रेलिवेंट लॉज एंड गवर्नमेंट ऑर्डर। अब लीगल रिक्वायरमेंट्स में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और बाद में सब्सिक्वेंट काफी अमेंडमेंट्स हुए हैं कोविड के टाइम में, उसके बाद भी, तो ये इसकी रूल्स की एक कॉपी उपलब्ध रहना चाहिए फैसिलिटीज के पास, अपडेटेड वन, सो दैट एनी टाइम आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, फायर सेफ्टी कंप्लायंसेस के ऑर्डर्स, आपके फायर सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स क्या है? फायर सेफ्टी में हमने एग्जाम्पशन दिया है कि एनओसी इसकी जरूरत नहीं है डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स में, बट आपको कंप्लायंस क्या करना है, एनक्वास के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए।
एग्जिट प्लान स्पेसिफिक रहना चाहिए, आपको डिमार्केटेड असेंबली पॉइंट एक स्पेसिफिक रहना चाहिए, जहां पे अगर कुछ अनहोनी होती है तो सारे स्टाफ आपके पेशेंट्स ये एक जगह पे असेंबल होके फिर जो कॉम्पिटेंट पर्संस हैं फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, वो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हुए उस फायर कैजुअलिटीज में फायर को रोकने में कोशिश कर सकते हैं। और असेंबली पॉइंट डिमार्केटेड रहना चाहिए विद इन द प्रीमाइसेस, और ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स फॉर फायर सेफ्टी, जैसे ये लीगल रिक्वायरमेंट बायोमेडिकल का भी है कि ट्रेनिंग ऑन एवरेज हर साल 2 बार होना चाहिए। इसी तरह ट्रेनिंग ऑन फायर सेफ्टी, क्योंकि स्टाफ चेंज हो रहे हैं तो एक रिकॉर्ड्स भी रखना चाहिए, ट्रेनिंग हुआ है कि हाउ टू यूज द फायर एक्सटिंग्विशर। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस का भी रिक्वायरमेंट्स हैं। कनेक्शन पेपर, आप जो फैसिलिटीज को आपने इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस लिए हैं, ये आपके पास एक मीटर का कनेक्शन पेपर होना चाहिए। डिफरेंट लोड, इलेक्ट्रिकल लोड कितने हैं इसके एक पेपर होने चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग इज अर्थिंग, अर्थिंग सिस्टम होने चाहिए, जैसे शॉर्ट सर्किट ये सब लाइटनिंग हो रहे हैं, ये आपके फैसिलिटीज में इंस्टॉल्ड है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास अर्थिंग का फैसिलिटीज होना चाहिए आपके फैसिलिटी में। डेंजर साइन का डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ डेंजर साइन उस जगह पे रहना चाहिए। सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करना है फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। गाइडलाइन ऑफ कोटपा एक्ट, ये है नो स्मोकिंग टोबैको जोन के लिए, ये गाइडलाइंस भी उपलब्ध रहना चाहिए। कॉपीज आपके पास रहने चाहिए कि इस फैसिलिटी में अगर कोई वायलेट करता है तो हमारे पास इस एक्ट के तहत क्या प्रावधान है पनिशमेंट करने का। लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीज बाय स्टेट, ये भी आपके पास एक कॉपी रहना चाहिए। कॉपी ऑफ डिफरेंट लाइसेंस एंड ऑफिस ऑर्डर रिलेटेड टू, कोई भी आपका सर्विस ऑफिस और लाइसेंस आपने स्पेसिफिक कोई इक्विपमेंट्स के लिए लाइसेंस लेके रखा है, वो भी आपके पास रहना चाहिए। ऑफिस ऑर्डर, डिफरेंट स्टाफ एंड डेपुटेशन हुए हैं, ये सब की कॉपीज ऑफिस ऑर्डर आपके पास होने चाहिए फॉर एज ए compliance for this standard. की मैसेज इस टॉपिक में है कि आपको इंश्योर करना है कंप्लायंसेस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स अंडर D6 में 5 रिक्वायरमेंट्स है, ये आपके फैसिलिटीज में उपलब्ध रहना चाहिए कंप्लायंस के साथ, और एक कॉपी हर एक लाइसेंस हो, ऑफिस ऑर्डर हो रेलेवेंट टू दिस एक्ट शुड बी अवेलेबल इन योर फैसिलिटी। थैंक यू। Thank you, Dr. Ranjit. So our second session is related to how the maintenance of the facility and how the equipment maintenance will be performed in a healthcare facility to meet the requirements of the National Quality Assurance Standard. हमारा साथ आज का दूसरा सेक्शन फैसिलिटी मेंटेनेंस और इक्विपमेंट मेंटेनेंस के ऊपर केंद्रित है। सेशन विल बी टेकन अप by Mr. Anand Yadav. Mr. Anand Yadav is consultant with Quality and Patient Safety Division NHSRC, primarily responsible for the larger states of Andhra Pradesh, Karnataka, Andaman and Nicobar, and UT of Chandigarh. Anand is our nodal for all the IT initiatives that are being taken up under the Quality and Patient Safety Division, right from Mera Hospital, Gunak application, and even the integration of the quality processes in the Saksham portal. So next session हमारे साथ आनंद यादव हैं जो इस सेशन को आनंद यादव कंसल्टेंट है क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीजन की तरफ से। आनंद प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी एक्टिविटीज को दिशा निर्देश देने के लिए स्टेट ऑफ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यूटी ऑफ अंडमान निकोबार एंड चंडीगढ़ के लिए। वो नोडल हैं हमारी तरफ से आईटी इनिशिएटिव्स के लिए,
चाहे वो मेरा अस्पताल की बात करें, चाहे गुनक एप्लीकेशन की बात करें, चाहे क्वालिटी रिलेटेड प्रोसेसेस सक्षम के रिलेटेड बात करें. So he will be taking up the session on equipment maintenance and maintenance of health facilities. तो वो सेशन लेंगे मेंटेनेंस हेल्थ फैसिलिटी का कैसे किया जाए और इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी लेवल पर क्या करना होगा. सो विद दैट ओवर टू यू आनंद. Thank you, sir. सभी को good afternoon everyone. Now we will start our next session, maintenance and maintenance of health facility. के अंदर हम इसके अंदर हम बात करेंगे जितनी भी हमारे सब सेंटर पे इक्विपमेंट है एज पर IPHS, उसका मेंटेनेंस कैसे करें और उसको उस स्थिति में कैसे रखें कि वो काम करता रहे और हम हमारे सब सेंटर पर आने वाले जितने भी लाभार्थी हैं उनको सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं. So in this session we will learn about how we can ensure the maintenance of equipment and our healthcare facility so that we can continuously provide services to the beneficiary who are visiting our arm center. सबसे पहले एनक्वास के अंदर ये जो कंपोनेंट है ये हमारा सपोर्ट सर्विस के अंदर आता है जो कि हमारा एरिया ऑफ कंसर्न D है. So before going forward, this equipment maintenance part is under the area of concern D, support services, and the standard is D1. This include maintenance and upkeep of the facility. So in this standard, we have two measurable element. इस स्टैंडर्ड के अंदर हमारे दो मेजरेबल एलिमेंट है. एक बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिसके अंदर हमारा बिल्डिंग, कंडमनेशन मटेरियल, इक्विपमेंट, उनका रेगुलर कैलिब्रेशन आता है. दूसरा बात करता है हमारा सैनिटेशन और हाइजीन के अंदर हम अपने स्वास्थ्य केंद्र में क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट बना के रखें. क्या क्या हमें उस एनवायरनमेंट को बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है और क्या प्रोसेस ऑफ सेफ डिस्पोजल है ऑफ जनरल वेस्ट. So in this standard there are two measurable element. One is concerning about the infrastructure part which includes the building, equipment, condom material, clean premises, and second M is talking about the sanitation and hygiene. So in hygiene we are talking about the clean and hygienic work environment in our health and wellness center, now Ayushman Arogya Mandir, availability of cleaning material, process of safe disposal of general waste, and availability of adequate linen. अगर हम इस सेशन के उद्देश्य की बात करें तो इस सेशन का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य कर्मियों की समझ और क्षमता को बढ़ाना ताकि जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं उनको प्रभावी रखरखाव को सुनिश्चित कर सकें और निरंतर सेवाएं प्रदान कर सकें. The objective of this session is to enhance the understanding and capacity of healthcare staff, ensuring effective maintenance of biomedical health facility infrastructure, and also promote uninterrupted services delivery, patient safety, and compliance with the quality assurance standard. आगे बढ़ने से पहले we will understand what is maintenance. तो अगर general term में if we talk about maintenance, तो maintenance is in general taking care of something so that it continue to work properly. इसका मतलब है किसी भी चीज का उस तरीके से ख्याल रखना ताकि वो निरंतर कार्य कर सके, सही तरीके से कार्य कर सके और लंबे समय तक उसका हम उपयोग कर सकें. जैसा कि आपने देखा होगा कि हम लोग पैसेंजर व्हीकल यूज करते हैं, बाइक हो गई, कार हो गई, उनकी भी रेगुलर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक उसी तरह हेल्थ केयर फैसिलिटी में जो भी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं उनकी भी रेगुलर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें. और क्योंकि हम हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं तो उन इक्विपमेंट का महत्व काफी ज्यादा हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से हम सामने वाले पेशेंट या बेनिफिशियरी को इफेक्ट करते हैं. तो वो सही इक्विपमेंट सही तरीके से काम करे इसलिए हमें मेंटेनेंस की जरूरत होती है. मेंटेनेंस अगर हम कहें तो इसके अंदर 4 चीजें इंक्लूड होती हैं. पहला हो गया उसकी रेगुलर चेकिंग. दिस इन्वॉल्व रेगुलर चेकिंग ऑफ द इक्विपमेंट,
cleaning of the equipment, repairing if required, and replacing part. तो इसके अंतर्गत हमें नियमित रूप से हम जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसकी जांच करनी है, साफ सफाई का उसका ध्यान रखना है, उसकी रिपेयरिंग की अगर जरूरत है तो उसको करना है, और अगर हो सकता है कि कई बार वो रिपेयरिंग से ठीक ना हो तो उसको हमें रिप्लेस करने का भी प्रावधान होना चाहिए। तो अगर हम समरी में कहें तो मेंटेनेंस जो है उसके अंतर्गत रोकथाम कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उस इक्विपमेंट को खराब होने से। इसके अंतर्गत आप उसकी रेगुलर चेकिंग कर सकते हैं, उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, रिपेयरिंग कर सकते हैं, उससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपका इक्विपमेंट खराब ना हो। रेगुलर देखभाल उसकी, सही तरीके से इस्तेमाल करना और टाइम समय पर कार्रवाई। जब आपका इक्विपमेंट खराब हुआ है या जब आपको लगता है कि हमारा इक्विपमेंट सही से काम नहीं कर रहा है, उस टाइम उसकी मेंटेनेंस की जरूरत हो सकती है। आगे हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है। उसमें हम समझेंगे कि कैसे टाइमली एक्शन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इक्विपमेंट को फंक्शनल करने के लिए। So in summary, if we understand what is maintenance, so maintenance include prevention of the equipment, care of the equipment, and timely action by the operator. आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे how many type of level of equipment maintenance are there. So there are 3 level of equipment maintenance. पहला होता है by operator, जो उसको यूज कर रहा है day to day operations. दूसरा इज बाय इन हाउस बायोमेडिकल इंजीनियर्स, जो कि हमारे एनएचएम के अंतर्गत हमारे इंजीनियर्स जो हमने स्वास्थ्य केंद्र पर हायर कर रखे हैं। तीसरा है हमारा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने ट्रेंड इंजीनियर्स के थ्रू। सो अगर हम इक्विपमेंट के रखरखाव की बात करें तो 3 तरीके से हम रखरखाव कर सकते हैं, 3 लेवल पे। पहला है संचालक द्वारा, जो उसका संचालक कर रहा है। सब सेंटर लेवल पे हम देखेंगे तो सीएचओ और एएनएम है जो उसका संचालन करते हैं, तो उनके द्वारा। दूसरा, संस्थान के भीतर जो भी हमारे बायोमेडिकल इंजीनियर हैं उनके द्वारा। और तीसरा, जो मैन्युफैक्चरर है उनके ट्रेंड इंजीनियर द्वारा। तो इन 3 तरीकों से इक्विपमेंट मेंटेनेंस को इंश्योर किया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इक्विपमेंट मेंटेनेंस आर देयर। पहला टाइप जो है प्रिवेंटिव और शेड्यूल मेंटेनेंस। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि शेड्यूल मेंटेनेंस मतलब आप अगर जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो वो आपको बताते हैं कि 1000 किलोमीटर पे पहली सर्विस करानी है, फिर 5000 पे करानी है। ऐसे ही जब आप इक्विपमेंट को प्रोक्योर करते हैं उसके साथ एक मैनुअल आती है जिसमें उसका शेड्यूल मेंटेनेंस का एक शेड्यूल दिया होता है कि आपको कितने टाइम पे इसको मेंटेनेंस करवानी है पीरियोडिक, ताकि उससे हम चेक कर सकें कि क्या सारी चीजें सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंक्लूड carried out at a predetermined interval or accordingly to the manufacturer recommendation to reduce the probability of equipment failure. क्यों जरूरी है ये? So that हम प्रिवेंट कर सकें डाउन टाइम को इक्विपमेंट की, एंश्योर सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट की उपकरण की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें और उसकी लाइफ टाइम को हम इंक्रीज कर सकें, ताकि हम उसको इमरजेंसी या अपने डे टू डे ऑपरेशंस के टाइम पे उसको सही तरीके से यूज कर सकें। तो प्रिवेंटिव और शेड्यूल मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड so that we can reduce the equipment downtime, ensure safety of equipment, extend the life of equipment, and ensure its availability during the operations. अगला टाइप का जो मेंटेनेंस है that is breakdown और corrective maintenance, खराबी या सुधारात्मक रखरखाव। This is the maintenance carried out after fault recognition and is intended to put equipment into the state in which it can perform a required function. ब्रेकडाउन और करेक्टिव मेंटेनेंस हम तब करते हैं जब हमें पता लगता है कि हमारा इक्विपमेंट काम करना बंद कर चुका है या हमारा जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट नहीं कर रहा है, तब हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते हैं। एनालाइज द रीजन फॉर ब्रेकडाउन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्रेकडाउन है उसका कारण क्या है। एंड एंश्योर अर्ली रेक्टिफिकेशन। जैसे ही आपको ब्रेकडाउन का पता लगता है उसको आपको शीघ्र सुधार करने के लिए
प्रावधान करना है, आप अपने पीएससी से संपर्क कर सकते हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट है जो खराब हो गया है, उसको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं या उसको कैसे सही कर सकते हैं। इसमें आपकी जिम्मेदारी ये होगी, द यूजर शुड रिकॉर्ड डिटेल ऑफ द ब्रेकडाउन, कि किस दिन ब्रेकडाउन हुआ है, कौन सा इक्विपमेंट आपका ब्रेकडाउन हुआ है, और अगर आपके सब सेंटर में कोई ब्रेकडाउन या फॉल्टी इक्विपमेंट है तो उसको आपको लेबल करके रखना है कि ये इक्विपमेंट यूज में नहीं है या ये इक्विपमेंट खराब है। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि आपकी अनुपस्थिति में कोई और उस खराब इक्विपमेंट को यूज ना करे। So the user should record detail of the breakdown and attach label to the faulty equipment so that it is not used by the other staff. अब हम अगर बात करें सब सेंटर पर इक्विपमेंट की, तो ये कुछ 13 इक्विपमेंट हैं जो कि सब सेंटर पर उपस्थित होते हैं। इसके अंदर हमारा बीपी एपरेटस आता है, वेइंग मशीन आती है, हीमोग्लोबिनोमीटर आता है, ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, एनेरॉइड बीपी एपरेटस, बेबी वेइंग मशीन स्केल, स्टेथोस्कोप, नियर विजन, स्नेलन चार्ट, स्पीडियोमीटर, ट्यूनिंग फॉक और फिटोस्कोप। फिटोस्कोप की जरूरत मोस्टली हमें सब सेंटर टाइप बी की पड़ती है, और अगर आप देखेंगे इन 13 में से सभी को कैलिब्रेशन या कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनकी कैटेगरी आप देखेंगे तो सारे नॉन क्रिटिकल कैटेगरी हैं और सारे नॉन इलेक्ट्रोमेडिकल हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल्स का बहुत कम यूज होता है। गाइडलाइन के अनुसार ये 5 इक्विपमेंट हैं जिनका जो कि टेस्टिंग और कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। These are the 5 equipment which require testing or calibration or regular maintenance. One is digital hemoglobinometer, second is digital glucometer, third is digital BP apparatus, fourth is weighing scale, and fifth is baby weighing scale. ये 5 equipment हैं that required testing and calibration. इनका हम कैलिब्रेशन कर कैसे सकते हैं? तो उसके लिए वी विल शेयर गाइडलाइन लिंक इन द चैट बॉक्स। आप उसमें जाके पता कर सकते हैं कि हम डिजिटल बीपी एपरेटस का, वेइंग स्केल का या बेबी वेइंग स्केल का कैसे टेस्टिंग और कैलिब्रेशन कर सकते हैं, सो डैट जब भी हम उसको यूज करें वो करेक्ट रीडिंग प्रोवाइड करे और उससे हमारे पेशेंट की स्वास्थ्य पे कोई इफेक्ट ना पड़े। So we will in the chat box we will share a guideline which include the equipment and reference regarding how we can calibrate these 5 equipment at the sub health center, which are digital hemoglobinometer जो कि हम that can be calibrated with the help of auto hematology analyzer, digital glucometer which can be tested or calibrated with the help of biochemistry analyzer. These two, normally what we do, we compare the reading of both the equipment. We compare the reading of hemoglobinometer, we compare the reading from the hematological analyzer to understand whether our equipment is performing good or not. Same with the digital glucometer. डिजिटल ग्लूकोमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए हमें करना क्या है कि हमें हेमाटोलॉजी एनालाइजर जो कि हमारे पीएससी लेवल पर उपस्थित होता है, उससे हमें सेम सैंपल को टेस्ट करना है, उसकी रीडिंग को ऑब्जर्व करना है कि क्या वो एक जैसी रीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रीडिंग लेने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपके हीमोग्लोबिनोमीटर की रीडिंग 0 हो, आपकी स्ट्रिप्स जो हैं वो एक्सपायर्ड ना हो, और हेमाटोलॉजिकल एनालाइजर के जो भी रिएजेंट हैं वो सारे एक्सपायर्ड ना हो, तभी आपको करेक्ट रीडिंग मिलेगी। और रीडिंग लेने के बाद आपको इसका रिकॉर्ड भी रखना है कि हमने इस दिन को, इस सैंपल को और क्या रीडिंग आई थी, ये सारे रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं अपने फैसिलिटी पे। इसका एक आप रजिस्टर बना सकते हैं इक्विपमेंट मेंटेनेंस के नाम से, जिसके अंदर आपको 3-4 पॉइंट्स मेंशन करने हैं जो कि हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। और बाकी इक्विपमेंट का कैसे कैलिब्रेशन करना है, दैट वी विल शेयर अ गाइडलाइन इन द चैट बॉक्स
and we have also pasted the link in the PPT. The PPT will be available on our NHSRC website. आप वहां से इस गाइडलाइन को एक्सेस कर सकते हैं. अब फ्रीक्वेंसी की बात करें कि आपको कब कब इनका मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन करना है. सबसे पहले जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं एज पर गाइडलाइन 2 बार साल में कैलिब्रेट और कैलिब्रेशन होना चाहिए. हमारा सुझाव रहेगा कि जब भी आप इक्विपमेंट को यूज करें उसकी 0 रीडिंग को अवश्य देख लें. तो एज पर गाइडलाइन all the equipment need to be calibrated twice per year, and our suggestion will be to ensure that all the equipment are giving 0 reading before using it on the with the patient or beneficiary at the sub health center. ये एक सैंपल फॉर्मेट है जो कैलिब्रेशन रिपोर्ट का है, जो कि उस गाइडलाइन में अवेलेबल है आपका. इसके अंदर आपको क्या करना है, जितने भी आपके 5 इक्विपमेंट हमने बताए हैं उसका नाम आपके पास होना चाहिए, मेक मॉडल उसका होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए, कौन सा टेस्ट किया है आपने, फिजिकल कंडीशन टेस्ट हुआ है, इलेक्ट्रिकल टेस्ट हुआ है, कैलिब्रेशन टेस्ट हुआ है, उन सब की डिटेल होनी चाहिए. और ये रिकॉर्ड आपको अपनी हेल्थ फैसिलिटी पे मेंटेन करना है. और ये जो कैलिब्रेशन है आपको ईयर में 2 बार करना है और इसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन रखना है. एक रिकॉर्ड आपको मेंटेन रखना है इक्विपमेंट मेंटेनेंस की जब हम बात करते हैं. वन इज दिस एनुअल इक्विपमेंट इन्वेंटरी सर्वे. In this record, you have to maintain all the equipment, all the 13 equipment or more than 13 equipment based on the scope of your services in your register, that these all equipment are available with us and what is the functionality status of all those equipment. So इस annexure में आपको maintain रखना है जितने भी आपके पास inventory है equipment की, that how many equipments are there. Suppose आपके पास बीपी apparatus है, डिजिटल बीपी मीटर है, उसकी संख्या 2 है, तो यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है, उसकी संख्या लिखनी है, कितने फंक्शनल हैं, कितने नॉन फंक्शनल हैं, वो सारी चीजें मेंशन करनी है. और अगर उससे रिलेटेड कोई रिमार्क है तो वो आपको इस एनेक्सर में मेंटेन रखना है. तीसरा आता है हमारा इक्विपमेंट मेंटेनेंस लॉगबुक, कि अगर आपका कोई इक्विपमेंट खराब हुआ है तो उसका आपने मेंटेनेंस करवाया है, कैलिब्रेशन करवाया है या नहीं करवाया है, उसका ब्रेकडाउन डेट क्या था. मान लीजिए अगर वो 2 तारीख को ब्रेकडाउन हुआ है तो उसकी डेट लिखनी है, उसका टाइम मेंशन करना है, कब उसको रेक्टिफाई किया गया है, और फिर इससे आपको टोटल ब्रेकडाउन टाइम मिल जाएगा. मान लीजिए आपका ब्रेकडाउन 2 तारीख को हुआ था और आपने रेक्टिफाइड उसको 4 तारीख में करवा लिया है, तो यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन टाइम जो है वो 2 डेज का हो जाएगा. तो आपको ये रिकॉर्ड ऐसे ही अपने हेल्थ फैसिलिटी पे मेंटेन करना है. और ये सारे एनेक्सर आप एक ही रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए अलग अलग रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है. एक ही इक्विपमेंट मेंटेनेंस का रजिस्टर बनाइए. उसमें फर्स्ट विल बी योर इन्वेंटरी, कि व्हाट ऑल इक्विपमेंट यू हैव इन एट योर हेल्थ एंड आर्म सब सेंटर. सेकेंड विल बी इक्विपमेंट मेंटेनेंस लॉगबुक, कि अगर आपका कोई आपने कैलिब्रेशन करवाना है जो आपको फ्रीक्वेंसी बताई गई है कि ट्वाइस अ ईयर, उसका एक मेंटेनेंस रिकॉर्ड रखना है. और दूसरा आपको रखना है रिकॉर्ड कैलिब्रेशन रिपोर्ट का, कि आपने जो कैलिब्रेशन कराई है उसकी आपके पास रिपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए. ऑल्सो आपके पास उस हेल्थ फैसिलिटी या जो भी नोडल है, अगर आपके पास इक्विपमेंट खराब होता है तो आप किससे कांटेक्ट करेंगे, दैट कांटेक्ट नंबर शुड आल्सो बी डिस्प्लेड एट योर हेल्थ फैसिलिटी और इन योर टेस्टिंग एरिया जहां पे आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं. इसके बाद एरिया ऑफ कंसर्न डी में D1 स्टैंडर्ड का जो कंपोनेंट है, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ फैसिलिटी. इसके अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे हम इक्विपमेंट की मेंटेनेंस करेंगे, उसका कैलिब्रेशन करेंगे, उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे. अब हम बात करेंगे ओवरऑल हेल्थ फैसिलिटी की, कि हेल्थ फैसिलिटी में क्या क्या मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है. तो एज पर एनक्वास
The second component of standard D1 is maintenance of health facility. In this measurable element, we will talk about how we can maintain our health facility. तो इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहली व्हाइट वॉशिंग इन यूनिफॉर्म कलर. सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि जो आपके सब सेंटर का कलर है आयुष्मान आरोग्य मंदिर की गाइडलाइन के हिसाब से हो. उसमें हमने येलो कलर का हमने प्रावधान रखा है. तो पूरी बिल्डिंग येलो होनी चाहिए, एज पर गाइडलाइन होनी चाहिए. जो भी हमने ब्रांडिंग के उसमें रिक्वायरमेंट दे रखी है वो सारी रिक्वायरमेंट मेट होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दीवारों का कलर अलग अलग है, सभी दीवारों का कलर यूनिफॉर्म होना चाहिए. दूसरा हम बात करते हैं नो सीपेज, क्रैक्स, चिपिंग ऑफ प्लास्टर. कहीं पे भी वाटर सीपेज नहीं होना चाहिए, दीवारों में क्रैक्स नहीं होने चाहिए, प्लास्टर उतरा हुआ नहीं होना चाहिए. आपको ये सारी चीजें इंश्योर करनी है. उसके बाद हम बात करते हैं नो अनवांटेड एंड आउटसाइड पोस्टर. कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपके सब सेंटर में कोई भी अनवांटेड पोस्टर ना लगा हो जिसकी आपके सब सेंटर से कोई जरूरत ना हो. या कई जगह हमने देखा है कि सब सेंटर पे पोस्टर लगे रहते हैं कि जॉब के किसी वाईफाई वाले के यहाँ वाईफाई लगवाने के लिए यहाँ कांटेक्ट करें. तो आपको इंश्योर करना है कि ये सारे पोस्टर वहां पे ना लगे हों और आउटडेटेड पोस्टर भी वहां पे ना लगे हों. कई जगह हमने देखा है कि अब जैसे टीबी का प्रोग्राम जो है वो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम हो गया है, लेकिन उस पे अब भी टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का पोस्टर लगा हुआ है. तो आपको इंश्योर करना है कि ये सारे आउटडेटेड पोस्टर आपकी फैसिलिटी पे ना लगे हों. फिर हम बात करेंगे लैंडस्केपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ओपन एरिया. सब सेंटर पे अगर आपके पास ओपन एरिया अवेलेबल है तो आपको उसमें उसको मेंटेन करके रखना है. इंश्योर करना है कि कहीं पे पानी जमा ना हो, पेड़ पौधों की रेगुलर उसकी कटाई होती हो. और वहां पे एक चीज और इंश्योर करनी है, अगर आपने हर्बल गार्डन बना रखा है तो उस पे मैपिंग कर दें कि उस प्लांट का नाम भी लगा सकते हैं लैंडस्केपिंग के अंदर. और ये अगर ऐसा करने से आपको कायाकल्प में भी मदद मिलेगी, क्योंकि कायाकल्प के अंदर हम हर्बल गार्डन की बात करते हैं. फिर हम बात करते हैं नो लीकिंग ऑफ टैप, पाइप्स और टैंक. पानी से रिलेटेड जितने भी हमारी टैप्स हैं, पाइप है, वाटर स्टोरेज टैंक है, हमें इंश्योर करना है कि उसमें कोई लीक ना हो, वो साफ सुथरे हों, उनकी रेगुलर टेस्टिंग होती हो. और इसका आपको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है कि आपने कब आखिरी बार पानी की टंकी की साफ सफाई करी थी और उसका क्लोरीनेशन कब करवाया था. ये सारी चीजें आपको रिकॉर्ड करनी है. फिर हम बात करते हैं पेस्ट एंड रोडेंट कंट्रोल, कि आपने वहां पे ये कब इंश्योर पेस्ट एंड रोडेंट कंट्रोल कब करवाए, ताकि इंश्योर कर सकें कि वहां पे जो मच्छर हैं, चूहे हो गए, ये सारी चीजें वहां पे उत्पन्न ना हो. इन सब के लिए आपने क्या मेजर लिए हैं और इसके लिए आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि आपने कब पेस्ट एंड रोडेंट कंट्रोल करवाया था अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी में. फिर आता है कंडमनेशन. जितनी भी आपकी खराब चीजें हैं इसके अंदर सारे इक्विपमेंट आ गए, जितनी भी पेशेंट अम्यूनिटीज, चेयर आ गई, ये सारी चीजें आपको इंश्योर करनी है कि किसी भी पेशेंट केयर एरिया में ना रखी हो. इनके लिए एक सेपरेट एरिया बनाया गया हो. इनकी एक पॉलिसी अवेलेबल हो कि अगर आपके पास कोई कंडम मटेरियल है तो उसको आप कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, आपको ये इंश्योर करना है. फिर आपका आता है क्लीन एंड हाइजीनिक सराउंडिंग. साफ सफाई का ध्यान रखना है. 2 बकेट सिस्टम सब सेंटर पे एप्लीकेबल है, उसको आपको इंश्योर करना है. वॉशरूम की साफ सफाई का ध्यान रखना है. क्लीनिंग चेकलिस्ट, इसके अंदर हम आपसे मांग सकते हैं कि आप क्लीनिंग उसकी रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. आने वाली स्लाइड में हम आपको एक फॉर्मेट दिखाएंगे कि आपको पेस्ट एंड रोडेंट कंट्रोल का क्या फॉर्मेट है, हेल्थ केयर फैसिलिटी के उसके मेंटेनेंस का क्या फॉर्मेट है, वो सारी चीजें हम आपको आगे वाली स्लाइड में दिखाएंगे. सो इन दिस मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ फैसिलिटी we are ensuring that whitewashing of the facility is done in uniform color as per the guideline of Ayushman Arogya Mandir. There is no seepage and crack or chipping of plaster at your sub center. No unwanted and outdated posters.
are available at the Ayushman Arogya Mandir Sub Health Center. Landscaping and maintenance of open area. If you have open area in your sub health center, so the landscaping should be maintained. If you have herbal garden, then the naming of the plant should be there at the in the open area, or there is no water logging in your open area and the pathway to the sub center is clearly demarcated and is not that is paved pathway, so that there is no harm to the patient while accessing the health facility. Another thing we are ensuring is no leakage of tap, pipe, and tanks. In this, please ensure that when was the last time you have undertook the cleanness of the water storage tank at your health facility. We also want you to record that thing ki last time when was that. Should maintain some frequency that every 2 months or 3 months we are going to clean the water storage tank in our healthcare facility, so that there is no bacterial growth our water tank. Second, then we are talking about the pest and rodent control to ensure that there is no mosquitoes, no other rodents in our like rats, snakes, etc. are not there in our healthcare facility. You need to do the rodent control with the help of PWD department, and record should be maintained. Then come the condemnation part. If you have some equipment which are not working or which are in the condemn stage, or if you have some chairs, some mattresses, etc., which are not in use, please ensure that those material are not available in your healthcare facility. And if they are available, there is a designated area to store that condemned material in your healthcare facility. And last one is that in this, we also ensure that clean and hygienic surroundings are maintained. We use all the, in ARM Sub Center, we are talking about the 2-bucket system. Cleanness checklist is there in your washroom. So all these things are required to maintain the healthcare facility. So if we summarize, so these are some of the implementation point कि whitewash and branding, सफेदी और branding का आपको ensure करना है. Removal of outdated poster, पुराने poster को हटाना है. No water logging inside and outside of the facility. कोई पानी भराव facility के अंदर या facility से बाहर नहीं होना चाहिए. Checklist for scheduled maintenance of basic amenities, pest and rodent control, बुनियादी सुविधाओं, कीट और चूहों के नियंत्रण आदि के लिए निर्धारित रखरखाव की चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए. रिमूव जंक मटेरियल फ्रॉम कॉरिडोर और ओपन एरिया. किसी भी पेशेंट के एरिया या कॉरिडोर में आपका कोई बेकार जंक सामान नहीं उपस्थित होना चाहिए. अगर वो है तो उसको आपको किसी एक पर्टिकुलर रूम में या पर्टिकुलर कॉर्नर में उसको रखना है. एनलिस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड शेड्यूल मेंटेनेंस. जितने भी आपके पास उपकरण हैं उसको बनाना, उसकी सूची बनाना और उसके निर्धारित रखरखाव की लिस्ट आपको रखनी है. अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ 2-bucket सिस्टम, 2 बाल्टी प्रणाली की उपलब्धता और उपयोग की हम बात करते हैं. कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ जनरल वेस्ट, सामान्य कचरे का संग्रह और निपटारण. जो जनरल वेस्ट आपका कलेक्ट हो रहा है उसको आप कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, कि ड्राई वेस्ट जो है वो ब्लू बिन में जाएगा, वेट वेस्ट हमारा ग्रीन बिन में जाएगा. ये सारी चीजें आपको एंश्योर करनी है अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी पे. ये कुछ फॉर्मेट है जो कि हम आपको अपनी चेकलिस्ट में एक लिंक के द्वारा प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट यू कैन एक्सेस इट एंड यूज इट एट योर हेल्थ केयर फैसिलिटी. इसमें पहला फॉर्मेट इज मेंटेनेंस फॉर्मेट, जिसके अंदर यू हैव टू फिल द बेसिक फैसिलिटी डिटेल, नेम ऑफ द सब सेंटर, state, district, date of inspection, name of CHO who has done the maintenance inspection. और ये कुछ जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस है जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बाउंड्री वॉल, डोर्स एंड विंडो, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर ड्रेनेज, एक्सेसिबिलिटी, नेम बोर्ड, इक्विपमेंट एंड फर्नीचर, बायोमेडिकल वेस्ट बिन, टॉयलेट फैसिलिटी. All these come under the maintenance part.
आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन भी करना है और इसके अंदर जो भी आपका इंस्पेक्शन जिसने किया है उसका डेजिग्नेशन, उसका सिग्नेचर और डेट ऑफ मेंटेनेंस होनी चाहिए। इसकी एक फ्रीक्वेंसी आप निर्धारित कर सकते हैं। 3 महीने पे आप एक बार इसका स्टॉक ले सकते हैं कि हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से हैं या नहीं है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से उपलब्ध हैं या नहीं है, ये सारी चीजें आप इंश्योर कर सकते हैं। और एसेसर जब आपके पास आएंगे तो दे विल आस्क कि आपके पास मेंटेनेंस रिकॉर्ड है, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड है या नहीं है। ये सारी चीजें आपको अपने हॉस्पिटल में मेंटेन करनी है। इसके लिए कोई नया रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट अ रिकॉर्ड। आप एक पेपर पे भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। बस उस पे इंश्योर करिए कि उस पे आपके जो भी इंस्पेक्शन कर रहा है या अगर आप पीएससी मेडिकल ऑफिसर के साइन उस पे अवेलेबल हों तो वो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा हमारा रिकॉर्ड पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड, कि आपने कौन सा एरिया ट्रीट किया है, क्या आपका टारगेट पेस्ट था, क्या आपने मेजर लिए हैं और कौन सा पेस्टिसाइड यूज हुआ है। ये सारी चीजें आपको रिकॉर्ड करनी है अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी में। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। ये जो लिंक है ये हम आपको चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें आप जितने भी हमारे पुराने वेबिनार्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। Okay, so what we will be doing, we will be sharing a feedback in the chat box. Please, it's a request from all the participants to please fill in the feedback so that we can improve this webinar further. हमने चैट बॉक्स में फीडबैक का लिंक डाला, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज उस फीडबैक को भरिए ताकि हम इस वेबिनार सीरीज को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। Regarding the training material, as I already told you, all the training material is available on the NHSRC website. All the PPTs are there. And जैसा हमने ट्रेनिंग मटेरियल के बारे में बताया, ट्रेनिंग मटेरियल NHSRC वेबसाइट पर अवेलेबल है और आप लोग ये सारा PPTs और वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं NHSRC की वेबसाइट से। यू कैन यूज दिस फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग। So coming to the questions, again it's a request, please fill the feedback. We will be taking up the questions. Request you all to please submit the questions in the chat box. If you have any doubt regarding the today's sessions, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आपका कोई क्वेश्चन है अगर आपके वेबिनार से रिलेटेड तो उसको प्लीज चैट बॉक्स में डालिए ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। Any amounts are verified. Transporting biomedical waste PHC, and the PHC from some authorized agency is transporting it to somewhere. Is that? Okay, so one question is related to the transportation of the biomedical waste to the mother PHC. Again, whatever the provision the subsector is having for the transportation of the biomedical waste, it is the responsibility of the healthcare facility to record the waste that is being generated from the facility. चाहे आपकी फैसिलिटी बायोमेडिकल वेस्ट को प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भेज रही है कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी को हैंड ओवर करने के लिए, फिर भी आपके सब सेंटर पर कुछ कितना वेस्ट आपने जनरेट किया और कितना हैंड ओवर किया कैटेगरी वाइज उसकी डिटेल होना मैंडेटरी। Yes. And again, it is a particular requirement that is not related at the facility level, but the district authorities should ensure that whenever there is an agreement with the common biomedical waste treatment facility and the healthcare facility, be it a PHC, it should mention the name of the subcenter from where the waste has been carried to the PHC. ये डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जब भी वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रही है कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी या वेस्ट कलेक्शन एजेंसी के साथ, उस एमओयू में उन सब सेंटर का नाम भी आए जिनसे वेस्ट को पीएचसी पे ट्रांसफर किया जा रहा है।
pest control company and to be used in education. Okay, so this direction regarding the pest control company, this direction cannot be given by the at the national level. So it will be the responsibility of the district authority, or at the facility level. You can decide whatever pest control agency you want to hire for this particular job. पेस्ट कंट्रोल एजेंसी फैसिलिटी लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आइडेंटिफाई की जा सकती है, जिसको आप हायर करना चाहते हैं पेस्ट कंट्रोल की एक्टिविटीज के लिए फैसिलिटी. देयर इज वन पर्टिकुलर for this particular gaps that has been highlighted, for example, non-availability of the bins at the biomedical at the sub-center level. Again, a request, please, whatever the gaps at the facility level you have, please form a compiled report and submit it to the district quality assurance committee or the unit. जहां पर आपके पास जो भी गैप्स आ रहे हैं सब सेंटर पर, जैसे बिल्स ना होना, ऐसे गैप्स की समरी बनाकर प्लीज आप अपनी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी को सबमिट कीजिए, ताकि उनके ऊपर पर्टिकुलरली एक्शन लिया जा सके. So again, all the concerns are very well noted. Again, all the concerns are very well noted. We are here to help in every regard for this NQAS implementation support. If you have any questions, you can just mail it to the particularly consultants, or even you can mail to NHSRC for any clarification regarding this particular thing. All the webinars and the PPTs are available on the NHSRC website. Link of the same is already being shared in the chat box. सारा वेबिनार के लिंक्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और पीपीटीज एनएचएसआरसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है. उसका लिंक हमने चैट बॉक्स पर डाला है. Again, a request from you all to please submit the feedback for this particular section. One question is regarding the shortage of the space due to dense population and old building. Again, if your facility is maintaining all the processes as per the requirement of the standards, it doesn't matter whether the building is in the old infrastructure or not. You just have to comply by the National Quality Assurance Standard requirements. अगर आपका सब सेंटर किसी ओल्ड बिल्डिंग में भी फंक्शन कर रहा है, आप फिर भी NQAS सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं. बस आपको ये एंश्योर करना होगा कि जितने भी प्रोसेसेस आप फैसिलिटी पर अंडरटेक कर रहे हैं, वो सारे प्रोसेसेस स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से किए जा रहे हैं. जब हम रेंटेड बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, if we are talking about the rented buildings, only score will be deducted in some part. It doesn't matter. It doesn't mean that facility will not get the NQAS certification. अगर आपका सब सेंटर एक रेंटेड बिल्डिंग में भी चल रहा है, आपका कुछ ही जगह स्कोर कम आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप NQAS सर्टिफिकेशन अचीव नहीं कर सकते. तो प्लीज इसको फैक्टर मत बनाइए कि आप रेंटेड बिल्डिंग में हैं या ओल्ड बिल्डिंग में हैं. अगर आपके सारे कार्य स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रहे हैं, आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई कीजिए. For all the buildings that are being run in the old infrastructure or the rented buildings, there will be some score reduction in the total score, but doesn't mean that you will not get the NQAS certification. Again, a request from you all to not take it as a constraint that the facility is being run in a old or rented building. Please apply for certification and you will get the certification on this.
Again, a request from you all to please submit the feedback for this particular session. Next session will be held on 13th November, and that will be related to particular topics that we have already been covered. Again, the request from you all to submit the feedback. And next session will be taken up on 30th November as per the plan. So again, as per Ayushman Arogya Mantri Sub-Health Center NQAS checklist, only a 2-bucket system for the housekeeping clinic is recommended at the Ayushman Arogya Mantri Sub-Health Center. हमारी आयुष्मान आरोग्य मंत्री सब हेल्थ सेंटर चेकलिस्ट के अनुसार क्लीनिनेस के लिए 2-bucket सिस्टम ही आपको सब सेंटर पर कार्यरत करना है सफाई के लिए. For getting the biomedical authorization, it is a one-time activity. If the facility is not getting the biomedical authorization in a physical manner within the 3 months of applying, please deem it that you have got the certification. You can apply on the State Pollution Control Board, online portal, whatever the details that a facility need to submit, including your annual report of the waste being generated from the healthcare facility. Biomedical waste की NOC एक वन टाइम एक्टिविटी है जो फैसिलिटी लेवल पे ही होगी. इसके लिए आपको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा. अगर आपको 3 महीने के अंदर कोई नोटिफिकेशन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नहीं आ रही है, उस केस में आप मानकर चलिए कि आपको बायोमेडिकल वेस्ट NOC मिल चुकी है. बेस्ड ऑन द नंबर दैट इज जनरेटेड, आपको वहां पर अपनी एनुअल रिपोर्ट्स सबमिट करनी है, कितना वेस्ट आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी से जनरेट हो रहा है, और उसका रिकॉर्ड आपकी फैसिलिटी पर भी मेंटेन किया जाएगा. Okay, again there is one particular question that is related to the use of the puncture-proof and tamper-proof containers. Again, I am highlighting this part. If the facility is having a puncture-proof and tamper-proof container, whole of the container has to be handed over to the common biomedical waste treatment facility. If facility doesn't have any suitable puncture-proof or tamper-proof container, then it will be the responsibility of the healthcare facility to pre-treat the sharps and the glassware and then hand over it to the common biomedical waste treatment facility or the agency that is collecting the waste. इन फैसिलिटी पर टेम्पर प्रूफ और पंचर प्रूफ कंटेनर की उपलब्धता है शार्प और ग्लासवेयर वेस्ट के लिए. उन फैसिलिटीज को पूरा का पूरा कंटेनर ही वेस्ट कलेक्शन एजेंसी को हैंड ओवर करना है. लेकिन जिन फैसिलिटीज पर टेम्पर प्रूफ और पंचर प्रूफ कंटेनर की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, उन फैसिलिटीज को पहले इन शार्प वेस्ट और ग्लासवेयर वेस्ट को हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ डिसइंफेक्ट करना या प्री-ट्रीट करना करके ही आपको बायोमेडिकल वेस्ट एजेंसी को हैंड ओवर करना होगा. So again, link has been provided regarding the training material that is available on the NHSRC website. Again, you all are requested to submit the feedback of the today's session so that we can improve on this particular session. Next session will be conducted on 13th November in this particular series of the NQAS implementation support for primary healthcare facilities. लिंक NHSRC की वेबसाइट का आपके चैट बॉक्स पर हमने डाल दिया है. सारा मटेरियल, ट्रेनिंग सेशंस, टॉपिक्स वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. नेक्स्ट सेशन हमारा 13 नवंबर को होगा. आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आज के सेशन का फीडबैक आप प्लीज सबमिट कीजिए सो दैट वी कैन इंप्रूव फर्दर ऑन दिस पर्टिकुलर वेबिनार सीरीज. So with that, again a request to please submit the feedback, and we will be eagerly awaiting for your response. Thank you and Jai Hind.